اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دن بدن بڑھتی ہوئی سموک کی۔ باغوں کے شہر کی فضا میں آلودگی کے ڈیرے۔ پاکستان کے سموک زدہ شہروں میں دوسرے نمبر پر شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 454، ڈی ایچ اے فیز 8 سب سے زیادہ متاثر، اے کیو آئی 1101 ریکارڈ۔ سید مراتب علی روڈ کا اے کیو آئی 649، کوالٹی انڈیکس 493 تک جا پہنچا۔ سہیل کیسر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سہیل۔ دیکھیں، سموک کے حوالے سے تو صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے، اور اگر آپ کوئی اچھی خبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم سے تو ہم معذرت چاہیں گے کہ فی الحال صورتحال میں بہتری کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ البتہ ایک بات ہے کہ ہم اکثر لاہور میں سموک کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب دوسروں کا دکھ دیکھتے ہیں تو اپنا جو دکھ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، کہ ان دنوں جب ہم ملتان والوں کا دکھ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑی سی تسلی ہو جاتی کہ شاید ہمارے یہاں پر صورتحال کچھ بہتر ہے، کہ وہ ملتان جہاں پر جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 1600 کی سطح سے بھی اس وقت تجاوز کر چکا ہے، اور گزشتہ ایام کے دوران تو 2000 کی سطح سے بھی تجاوز کر گیا تھا، اور اس کے مقابلے میں لاہور میں آج 672 کے قریب اوسط ایئر کوالٹی 676 کے قریب اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ پوری طرح سے اس افریت کے قبضے میں ہیں، کہ لاہور کی فضاؤں پر جو سموک کی زہریلی گیسز نے قبضہ جمایا ہے، تو تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود اس قبضے کو چھڑانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی گرفت جو ہے اس کو بھی قدرے ڈھیلا نہیں کیا جا سکا، اور اس کو بھی نرم نہیں کیا جا سکا، کہ پوری مضبوطی کے ساتھ سموک نے لاہور کی فضاؤں پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے، اور ستم بالائے ستم تو یہ بھی ہے کہ ابھی فی الحال صورتحال میں بہتری کا کوئی امکان بھی دکھائی نہیں دے رہا، کہ آپ یہ دیکھیے کہ قدرت بھی ہماری مدد نہیں کر رہی، کہ جب تک بادل نہیں آئیں گے تب تک جب تک پانی برسانے والے بادل نہیں آئیں گے تو تب تک صورتحال اسی طرح رہنے کا امکان ہے، اور فی الحال محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ 2-4 روز تک تو اس کے کچھ زیادہ امکان نہیں ہیں امکانات، لیکن اس کے بعد شاید کچھ تھوڑا سا کوئی بارش وارش کا امکان پیدا ہو جائے، کوئی قدرت کی مدد حاصل ہو جائے، کیونکہ اس وقت تمام نظریں جو ہیں وہ آسمان پر ہی جمی ہوئی ہیں، کہ کسی طرح کہیں سے کوئی بادل آ جائیں، کچھ 2-4 بوندیں برس جائیں، کچھ تو صورتحال بہتر ہو جائے۔ البتہ فی الحال اس کے بہتر ہونے کے امکانات ہرگز بھی دکھائی نہیں دے رہے، اور اسی تناظر میں طبی ماہرین کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑی سی احتیاط بھی کیجیے، اور ہم ابھی ماسک عموماً پہنتے ہیں، لیکن اس وقت تھوڑا سا مسٹیکنگ کی وجہ سے نہیں پہن سکے، اور یہ ہمیں اس وقت فیل بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں ماسک پہننا چاہیے تھا، کیونکہ جو سانس کے ساتھ ہم آلودگی اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں obviously وہ ہماری ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جی آپ کا شکریہ سہیل۔ لاہور سمیت صوبے کے 4 اضلاع میں آج سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ شاپنگ مال، ریسٹورنٹس بھی رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ فارمیسی، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، بیکریز کو استثناء ہوگا۔ ریسٹورنٹس کی آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی۔ فیصلے کا اطلاق آج سے 17 نومبر تک ہوگا۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عمران۔ دیکھیں، سموک کا روگ شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا۔ اس کے بعد اب تک جو اپڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ سموک جو ہے وہ چھا چکی ہے شہر لاہور میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف سے مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا کہا گیا، احکامات دیے گئے، اور انتظامیہ نے، حکومت نے اس وقت مارکیٹس جو ہیں لاہور میں 4 اضلاع میں بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کا جو نفاذ ہے وہ آج رات کو کر دیا جائے گا۔ 8 بجے شہر لاہور کی جو ہے وہ مارکیٹس بند ہونے جا رہی ہیں، جس پر ضلع انتظامیہ لاہور نے امپلیمنٹ کروانا ہے کہ کوئی دکان نہ کھلی ہو، جبکہ ریسٹورنٹس جو ہیں وہ ڈائننگ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے، جبکہ ٹیک اوے کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اجتماعات جو ہیں ان کو مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔ میڈیکل سٹورز، گروسریز، پنکچر شاپس، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول پمپس، ان کو بھی مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کھیل اور اجتماعات ہیں ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس وقت سموک کی وجہ سے شہر لاہور کی جو آلودگی کی شرح ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ آلودگی کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے SOPs جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کی طرف سے یہ SOPs جاری کیے گئے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ شہر لاہور میں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے کروائی جائے گی۔ جی آپ کا شکریہ عمران۔
स्मोक ने लाहौरियों को जकड़ लिया। सुबह सवेरे शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज़ कर गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन कहते हैं 14 नवंबर से मगरबी हवाएं मुल्क का रुख करेंगी। लाहौर में बादल आए तो मसनूई बारिश बरसा दी जाएगी। 14-15 नवंबर को रावलपिंडी डिवीज़न में बारिश बरसने का इम्कान। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। आज सुबह सवेरे भी शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी तजावज़ कर गया, जो कि तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो नुकसान का बाइस है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। शहर लाहौर के चंद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इंसान के बस में, कुछ इंसान के बस में नहीं है। तो अभी तक जो फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं मसनूई बारिश के लिए, वही डेवलप नहीं हुई लाहौर के लिए। पिंडी में कुछ पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वहाँ भी जो है ना वो हालात ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे। फिर मसनूई बारिश ना करने का फ़ैसला किया गया। ये इतवार और सोमवार का ये जो गुजरी है सुबह, इस सुबह होना थी लेकिन फिर नहीं हुई। तो अभी लाहौर में ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं कि इसका फ़ैसला किया जा सके। लेकिन अब भी एयर क्वालिटी के हवाले से आप बात करें तो ये 13 नवंबर को कल रात और परसों में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी एयर क्वालिटी में। नाइट टेम्परेचर्स में भी 1 डिग्री का या 1.5 डिग्री का कमी वाक़ई होगी। उसके बाद एक और स्पेल आ रहा है जो 14 नवंबर से हमारे यहाँ एक्टिव होगा। उसमें बालाई इलाकों पंजाब के, स्पेशली रावलपिंडी गुजरांवाला डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न के कुछ इलाके, और मुमकिन है आप कह लें कि 40% चांसेस हैं शायद लाहौर के कुछ एरियाज़ में भी हल्की बूंदाबांदी हो जाए। तो उस दौरान जो है मसनूई बारिश के मुतालिक भी सोचा जा सकता है, और ना भी हुई तो भी इंशाल्लाह जब सिस्टम वो गुजरेगा तो 3-4 दिन का रिलीफ में एयर क्वालिटी में भी मिलेगा, टेम्परेचर में 2-3 दिन का डिक्रीज़ होगा, तो टेम्परेरी रिलीफ होगा वो। अच्छा सर, ये बताएं, अब लाहौरिये तो इंतज़ार कर रहे हैं कब जो है वो हमें स्मोक से मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा मिल जाएगा, तो कब तक जो है वो स्मोक की जो शिद्दत है वो इसी तरह ही बरकरार रहेगी? स्मोक तो इस सीज़न का स्पेसिफिक फिनोमिना है, और ये ख़ात्मा मुकम्मल तौर पे नहीं होता। ये ग्रेजुअली जो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, जो ये स्मोक है ग्रेजुअली ये फॉग में कन्वर्ट हो जाती है, और फॉग फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिड तक बाज़ औक़ात प्रीवेल करती है। तो वो टेम्परेरी रिलीफ्स तो बीच में आते रहेंगे, लेकिन ये ग्रेजुअली जो है स्मोक फॉग में कन्वर्ट होगी। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ही बताया जा रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता कर जो ये स्मोक है ये फॉग में तब्दील हो जाएगी, और ये भी बताया जा रहा है कि 14 नवंबर से जो है वो एक नया स्पेल आ रहा है जिसमें रावलपिंडी, गुजरांवाला के इलाकों में जो है वो बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है जिससे जो है वो लाहौर में भी जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ रिलीफ मिल सकेगा। जी आपका शुक्रिया सामिया। 7 रोज़ में अपनी गाड़ी फिट करा लें वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब कमर्शियल ही नहीं, धुआं छोड़ने वाली प्राइवेट गाड़ियों की भी खैर नहीं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने दीगर इदारों से मिलकर जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। धुआं छोड़ती कोई भी गाड़ी अब कैमरे की आंख से नहीं बच पाएगी। मज़ीद तफसीलात ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। ये महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि अब कमर्शियल ही नहीं बल्कि धुआं छोड़ने वाली प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने दीगर इदारों से मिलकर जामे हिकमत अमली भी तैयार कर ली है, जिसमें माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली हर किस्म की जो गाड़ी है, खा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट व्हीकल है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी तनाजुर में महकमा ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, और इन प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 रोज में गाड़ियों की मुरम्मत करवाने का हुक्म दिया है। बसूरत दीगर धुआं छोड़ती गाड़ियों की सर्विस यकीनी ना बनाने वालों के खिलाफ भारी चालान किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने सूबा के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को ये हदायतनामा जारी कर दिया है, जिसमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मुतलका अजला के अड्डों तक महदूद करने की हिदायत जारी की गई हैं। इस सिलसिले में मुकम्मल मुरम्मत ना होने तक इन धुआं छोड़ने वाले व्हीकल्स को स्टैंड पर तहवील में रखने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से इन धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। जो सेफ सिटी की कैमरे लगे हैं उनके जरिए इन गाड़ियों की निशानदेही की जाएगी, और उसके बाद
किसी भी मुकाम पर अगर ये गाड़ी नजर आती है तो मुतलका जो पेट्रोलिंग पुलिस है उसके जरिए भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 15 सर्विस पर शिकायत करने की सहूलत दे दी गई है। 15 पर कॉल करके एक्सटेंशन 6 मिलाकर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की निशानदेही की जा सकती है। इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जवेद काजी का कहना है कि आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को कानूनी गिरफ्त में लाया जाएगा। बसों और अड्डों को खास तौर पर चेक किया जा रहा है। टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और दिन रात ऐसी गाड़ियां जो कि धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल के लिए हुकूमत मज़ीद मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली निजी गाड़ियों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी हो गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने लाहौर न्यूज़ के प्रोग्राम जागो लाहौर में तफसील बता दी। गाड़ियों का धुआं जो एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है इस स्मॉग के अंदर, लेकिन इसमें अगर कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट का महकमा काम नहीं कर रहा तो वो दुरुस्त नहीं है। देखिए हमारे पास जो फैसिलिटीज मौजूद हैं हम उसके अंदर रहते हुए जितना को मैक्सिमम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अभी हमने पिछले 5 से 6 महीने के अंदर कम से कम हमने 5 से 6 लाख गाड़ियां चेक की हैं, जिसके अंदर हमने जुर्माने भी किए हैं, पाउंडिंग भी की है, गाड़ियों को हमने रूट परमिट भी कैंसिल किए हैं और वो विक्स के अंदर जाके गाड़ियां चेक होती हैं जहाँ पर उनकी मिशन भी चेक होती हैं, ब्रेकिंग बाकी सारे मामले भी चेक होते हैं। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि विक्स का जो सेटअप है वो चूंकि बड़ा लिमिटेड है, शायद उसकी वजह से लोगों को, हैवी व्हीकल्स वालों को, कमर्शियल व्हीकल्स वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, वहाँ पे उनका थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए हमने अभी लाहौर के अंदर तो कम से कम 3 विक स्टेशन और नए बन रहे हैं हमारे, बाकी शहरों के अंदर भी हमने विक स्टेशन ऐड कर रहे हैं। इसमें एक बहुत मेजर फैक्टर है। देखिए बड़ी गाड़ियों को तो रूट परमिट इशू होने से पहले उनका हमें फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है और वो अगर नहीं होता तो हम गाड़ी को बंद करते हैं। प्लस हमने 2 महीने पहले से जो गाड़ियां काला धुआं देने वाली गाड़ियां थी उनको हमने लाहौर में एंट्री उनकी काफी अच्छे से बंद की और बड़ी हैवी फाइनिंग कर रहे हो, बड़ा मीडिया उसको कवर भी करता रहा और हमें बड़ा अप्रिशिएट भी करता रहा उसके अंदर। मेन इशू ये है कि अभी लाहौर के अंदर तकरीबन 5 मिलियन मोटरसाइकिल है, 3 मिलियन और गाड़ी है और तकरीबन 3.5-4 लाख आपके चिंगसी और रिक्शाज हैं जिनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमने अभी मोटर व्हीकल्स रूल्स के अंदर हमने अमेंडमेंट करके 2 माह पहले हमने ये कंपल्सरी किया है कि जितनी भी अब हमारी जो दूसरी गाड़ियां भी होंगी कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा जो आम लोगों के इस्तेमाल गाड़ियां भी थी उसकी भी हम फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करेंगे। उसके लिए चूंकि हमने एक और सेटअप बनाया था कि हम ये नहीं चाह रहे थे कि गवर्नमेंट दोबारा इस काम में, क्योंकि गवर्नमेंट की लिमिटेशन होती है, हम इतने ज्यादा सेंटर्स नहीं बना सकते जहाँ ये करोड़ों की तादाद में गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट हम इशू करें। वर्कशॉप्स का एक सेटअप बनाया है जिसके अंदर लोगों ने हमें 30-40 लाहौर के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है। प्राइवेट लोग इसकी सर्टिफिकेशन करेंगे, उनको सेट टूल्स हम देंगे, जो उनकी मशीनरी वगैरह की सर्टिफिकेशन हम देंगे। इशू यहाँ पे ये आता है कि हमने भी अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू की हुई है पिछले 3-4 महीने से। ग्रीन ऐप भी बन चुकी हुई है जिसके अंदर हमने सिटीजन से भी रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको कोई धुआं छोड़ती हुई गाड़ी नजर आए, कहीं पर क्रॉप बर्निंग नजर आए या इस तरह कोई और मसला नजर आए, कूड़े को आग लगी